यस सर। आपका मीडियम क्या है? मिडल मीडियम, माध्यम, इंग्लिश मीडियम सर। इंग्लिश में। यस सर। Okay. So Anil, tell me the major problems of UP. Sir, nowadays unemployment, law and order problem, and poverty level is very high in, compared to other states, and population growth rate is also very high. So comparatively, the resources distribution took time to reach the root level of people, and the governance policy implementation also took time. Okay. You have done BE Mechanical. Rashtrani University of Pune, Maharashtra. Yes. Anil, can you tell me the major differences between Eastern UP and Western UP? Eastern UP and UP. Sir, due to the proximity of Western UP to national capital, the development is more in Western UP than Eastern UP. Mostly the population is also low in Western UP, but high population density in Eastern UP, and the unemployment rate due to more factories, IT sector more developed in Western sector, Western UP. That's why the employability of people and employment people and more opportunity in Western UP in factory and manufacturing sector. But these all things are mostly lack in Eastern UP. Most of that Eastern UP people depend on agriculture, and due to the stagnation condition of the agriculture sector in all over India, and more in Eastern UP, that affect adversely the development of the people. One of the major problem in that Eastern UP part is that the flood in every year, the flood of river Ganga or Gomti river or some other river also affect that life of the people in Eastern UP. Okay. Can you tell me the cultural aspects of our region? Our region? Major Sorry, cultural characteristics. Okay. Our region. One of the what I think that one of the major cultural aspect is pluralism, that the religious people or education or various community people live, how they live, intolerance in that, in how they talk to each other, how they celebrate their festivals, how they respect other people. These identify or these reflect our religious growth or culture in a holistic manner, which shows that people how the cultures are respected, how the different cultures are respected with each other, and they make that whole culture of India, the plural culture of India. Okay. You belong from Gazipur. Yes sir, Gazipur, Uttar Pradesh. Can you tell me the famous personality belongs to Gazipur? Sir, Hamid Ansari, Vice President of India, one of the ex foreign. You have done your BE from University of Pune, Yes Maharashtra. sir. Yes sir. UP and Maharashtra both are major producer of sugar cane. Yes sir. But how they are different in the same crop? Different in same crop. Yes sir. Actually sir, what I study that the productivity of the land area in that area is more than Uttar Pradesh, and they have sugar factories. Number of sugar factories are more. That's why the production of sugar in that area is more, and so the commercially their profit also is more than Uttar Pradesh area. And so the cooperative society is well developed in Maharashtra than Uttar Pradesh, which benefits the farmers more. Okay. And can you tell me about the Pune?
Sir, Pune is western side, is situated at western side of Deccan Plateau and leeward side of Sahyadri Mountains. It is is historically famous for that Maratha kingdom, mostly governed from that Pune area, Shaniwarwada. And the outskirts of Pune, mostly the killas are there, so it attract tourists also, and it's glorify the Maratha kingdom also. And Pune in modern India side, Pune is famous for its education mostly good companies and education institution. Private investment is more in Pune, that's why the service sector also developed. So mostly it absorbs the rural population and the well educated person also. So balanced development is there in Pune. Pune is the capital of Maratha, Yes, sir. Shaniwarwada. ruled by the Peshwas. Yes, sir. Can you tell me about the Peshwas? Peshwa are Brahmins, and Brahmins, Bajirao Peshwa, one of the Brahman, and but leading community, and they from 1720 to 1760. What was the impact of Peshwas on the whole Maratha Empire? Okay, sir. Peshwa, they rule as a prime minister of Maratha kingdoms, and mostly they increase their territorial extent up to Punjab. They also affect that Mughal and Maratha are also there, and from in Tipu Sultan time, Marathas also play important role. After decline of after 1760 war, third war of Panipat, after decline of Maharashtra, then Britishers came and they acquired that territory. If Marathas are there, there is, I think so, sir, there is a minimum chance of Britishers to occupy that territory. Maratha was an empire. Yes. Okay, ruled by a king. And Peshwa was the PM, Prime Minister. Yes. And they were not democratic society. Yes. Then why Peshwa were more powerful than king? Sir, due to decentralization of Maratha kingdom, means the kingdom divided into Indore Peshwa, matlab Holkar kingdom, Bhosles of Nagpur, and itself the territory that they have lots of income in that territory also, and there's a minimal amount to the king. So that's why their in economic power increases, and it leads to the power of the Peshwas, and after the main center king which had declined some say, then they take initiative and they rule whole Maratha kingdom. Yes, sir. नाम है यादव अनिल सिंह यस। यस। एस अलग रखा है, देश का फुल फॉर्म क्या है? सर, वो मेरे पिताजी का नाम है, शिवशंकर यादव। अच्छा। यस सर। महाराष्ट्र में एक स्टैंडर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, जिसमें फर्स्ट सरनेम, देन माय नेम, पर्सनस नेम, एंड लास्ट नेम इज फादर्स नेम। तो दैट्स वाई द एस फॉर शिवशंकर सिंह। यस सर, फादर और मदर एग्रीकल्चर में। यस सर। सर हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं सर। तो मेरे काका अभी आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट लिमिटेड में जीएम है, तो मैं उन्हीं के यहाँ रह के पढ़ाई किया हुआ, और मेरी बहन और भाई, हमारा एजुकेशन वहीं से हुआ है। जॉइंट फैमिली की वजह से हमें सपोर्ट मिला वहाँ पे। यस सर। यस सर। यस सर। सर, मैकेनिकल इंजीनियर जो मशीनरी के बारे में ज़्यादा जानता हो, उसके ऑपरेशंस। जेम्स वाट और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बीच क्या रिलेशन है? सर, किसके? जेम्स वाट और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जेम्स वाट? जेम्स वाट नाम आपने सुना है? नो। जेम्स वाट का नाम आपने नहीं सुना? नहीं सर। जीएच राय सोनी से आपने बीई किया हुआ है, ये कौन थे? हाँ? जीएच राय सोनी कौन थे?
सर उनका इंस्टीट्यूशन है, एक पॉलिटिशियन कम एक ये हाँ एंटरप्रेन्योर थे, उन्होंने उसका नींव रखी थी सर। आपने बीए भी कर रखा है, यस सर, ऑपरेशंस मैनेजमेंट। इसके बावजूद आप आ रहे हैं 2015 में आपने बीए किया, उसके बाद आ रहे हैं सीएपीएफ में, ऐसा क्या रीजन है? सर एक्चुअली मुझे 2012 में मैंने जब सीएपीएफ पहली बार दिया था, उसके बाद मैंने एसएससी का सीएपीएफ की एग्ज़ाम दिया था, बट मेरा मेडिकल नहीं हो पाया था सर। तो इसके बाद मैंने सर प्राइवेट में जाने का सोचा, तो इसलिए मैंने एमबीए किया। बट क्या हुआ सर कि मैं इतने भी दिन बीचों में नोटिफिकेशन नहीं पढ़ता था सर, बट लास्ट का अटेम्प्ट था मेरा, तो मैंने नोटिफिकेशन पढ़ा जिसमें मेरे आय का मतलब मैनेजेबल लिमिट में था, तो इसलिए मैंने लास्ट टाइम अप्लाई किया सर। या 5 साल पहले आपने बीए किया हुआ है, हाँ सर। उसके बावजूद आप प्राइवेट सेक्टर या कहीं पर अपना बिजनेस नहीं कर रहे हैं, कि सीएपीएफ में आप आ रहे हैं? सर मैं प्रिपरेशन कर रहा था यूपी सर्विसेज का। यूपी सर्विस? यस सर। सर मैं 2017 मतलब सर यूपी पीसीएस का या लोअर पीसीएस का। यस। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई? सर ईयर नहीं पता, सॉरी सर। क्लियर नहीं? क्लियर। चखनिया का है भोजपुरा? यस सर। भोजपुरा बहुत फेमस है, यस सर। क्या रीजन है? सर वहाँ पे एक मठ है बीका साहब की, तो इसलिए सर वहाँ पे बहुत श्रद्धालु आते हैं, और अभी विजयदशमी का मेला लगता है, तो बड़ा मेला लगता है ज़िला में, तो मोस्टली यहाँ। और वहाँ पे जो खिचड़ी का होता है सर, खिचड़ी ईस्टर्न यूपी का एक फेस्टिवल है, तो 14 जनवरी को मनाया जाता है, तो वहाँ से प्रसाद की तरफ से वो खिचड़ी का लेके जाया जाता है चावल, तो इसलिए फेमस। गाजीपुर की 3 पर्सनालिटीज का नाम बताइए जिनको हम नहीं जानते। जिनको हम भी जानते हैं, हम नहीं है वहाँ के, लेकिन फिर भी जानते हैं। अच्छा सर, हामिद अंसारी जी तो एक हो गए, उसके बाद अफजल अंसारी सर, अभी वो सर एमपी रह चुके हैं। उनकी तो भारत में हर साल 5.5 है, हाँ। उनके बारे में मैं नहीं जानता। अच्छा सर फाइटर रहे हैं। सर मनोज सिन्हा जी हैं सर, मनोज सिन्हा भी गवर्नर एलजी हैं जेएनके के। उनके बारे में भारत का हर आदमी जानता होगा। सर 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 कैबिनेट मिनिस्ट्री में थे सर, तो जानते। मिनिस्टर तो बहुत सारे हैं। सर अच्छा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश में चल रहा है, गाजीपुर को क्या मिला हुआ प्रोडक्ट? सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज दैट सर। श्योर नहीं? श्योर नहीं है सर, पर वहाँ का सर गुलाब जल फेमस है। मतलब प्रोडक्ट के लिए आप श्योर नहीं, गवर्नमेंट ने क्या उसके लिए? नहीं सर, श्योर नहीं। प्लांटिंग आप करते हैं, पेड़ पौधे लगाने का शौक है आपको? हाँ सर। अभी रिसेंट में किसी राज्य ने सब गिनीज अवार्ड में नाम दर्ज कराए, सबसे ज़्यादा एक ही दिन में प्लांटेशन का। हाँ सर। कितने प्लांटेशन हुए थे और किस स्टेट में ऐसा हुआ? सर उत्तर प्रदेश ने किया है, और एग्जैक्ट नंबर ऑफ प्लांट्स नहीं आते सर। किस स्टेट को किया गया? हाँ उत्तर प्रदेश। किस डेट को किया गया? सर शायद सॉरी सर यूपी स्थापना दिवस के दिन 24 जनवरी से लास्ट। सुकन्या समृद्धि योजना? यस सर, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जो लड़कियां 10 साल से नीचे की हैं, उनके लिए उनके पेरेंट्स डिपॉजिट कर सकते हैं पैसे, और वो उनके आफ्टर 20 मैरिज टाइम पे और 2 बार विड्रॉ कर सकते हैं। सर इसलिए। गाजीपुर में ओपियम फैक्ट्री है। यस सर। मार्क्स कहते हैं, कार्ल मार्क्स का नाम आपने सुना होगा। यस कहते हैं कि अफीम ओपियम। धर्म जो है वो अफीम होता है। यस सर। तो धर्म के पॉजिटिव इम्पैक्ट, जैसे अफीम का होगा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है धर्म के? कार्ल मार्क्स की एक लाइन है। हाँ सर, रिलीजन इज लाइक ओपियम। इसको एक्सप्लेन आप कर सकते हैं?
सर ट्राई करता हूँ सर. सर religious have both, everything have both positive and negative impact. What religion I think so, what religion they group, they come, they attract people, they form a good bonding between them. And religion have collective demand, they can put a collective demand before state. Or religion provide some facilitate some things like institution also, just like Vivekananda started an institute. So these things religion can provide, but negative effect that religion can go beyond, means if the religion is not homogeneous between other religion, the problem is that just like one of the clashes between various community, like Hindu Muslim or Hindu Jains, in just like in Myanmar different religion. This is one of the negative effect of that religion. And opium, that's it. आपने फुटबॉल भी खेला है. Yes sir. रिसेंट में अमेरिका के किसी शेयर मार्केट या किसी जगह पर भारत के किसी फुटबॉल टीम का लोगो लगाया गया. सर हाँ सर मोहन बागान का लगाया गया. क्या है ये? सर वहाँ पे स्क्वायर पे, टाइम स्क्वायर पे उसका ऐड लगाया था. निसर्ग साधना क्या होती है? सर जो नेशनल गवर्नमेंट का जो 2001 में एक इनिशिएटिव था, नेशनल ग्रीन क्रॉप्स, तो उसमें हमारे रैयत शिक्षण संस्था ने पार्टिसिपेट किया था एज ए निसर्ग साधना इनिशिएटिव में. उसमें 50-60 लड़कों का ग्रुप होता था जिनको ट्रेन करके किया जाता था. उसके बाद जो आसपास का जो एरिया होता था वहाँ पे हम लोग प्लांट लगाते थे. तो रोड पे प्लांट लगा दिया, किसी सोसाइटी के प्रीमाइसेस में प्लांट लगा दिया. तो ऐसा इनिशिएटिव था रिसर्च साधना. उसमें कॉलेज सैटरडे संडे को इनिशिएटिव लिया जाता था. और जो जिस एरिया में रहते थे, जैसे हम लोग हड़पसर एरिया में रहते थे, तो उस एरिया के मोस्टली बिल्डिंग के चेयरमैन से बात करके उनसे प्लांट लिया जाता. मोस्टली सर अशोका ट्री लगाया जाता था, क्योंकि उसके फ़ायदे रहते थे कि वो सबसे ज़्यादा साउंड पॉल्यूशन को एब्सॉर्ब करता है. तो इसके वजह से सर ये इनिशिएटिव था. केमिकल इंजीनियर है. यस. तो एंटी नॉकिंग के लिए डीजल का जो इंजन होगा उसमें एंटी नॉकिंग क्यों किया जाता है और क्या यूज किया जाता है? सर एंटी नॉकिंग में होता है कि जो फ्यूल रहता है वो एक ही मतलब बर्न मतलब बहुत जल्दी हो जाता है. तो उसमें नॉकिंग शुरू हो जाती है. उसको रोकने के लिए मतलब फ्यूल में मिक्स किया जाता है एंटी नॉकिंग प्रोडक्ट. तो फ्यूल जो होता है सर वो मीन्स थोड़ा आराम से जलता है. मतलब कहने का मतलब कंबस्चन जो होता है वो थोड़ा आराम से होता है बस, इसलिए 90. कौन सा प्रोडक्ट यूज किया जाता है? क्या यूज किया जाता है एंटी नॉकिंग के लिए? तो शायद मिक्स होता होगा. सर मिक्स होता है सर. कार्बन मतलब C10 के आसपास कुछ आता है सर, एक्चुअली नाम नहीं पता है सर. ऑक्टेन और C10 हाँ ये दो वर्ड यूज होते हैं. हाँ ऑक्टेन ये डिफरेंसेस क्या होते हैं? सर आइडिया. अनिल, यस सर. आपकी हॉबी है प्लांटिंग करना. यस. प्लांटिंग के कितने टाइप होते हैं, कुछ बताएंगे? प्लांटिंग के टाइप कितने प्रकार से प्लांटिंग की जाती है? सर टाइप नहीं, एक दो पता है सर. से जैसे सर टाइप नहीं पता है सर. बताओ. जैसे ग्राफ्टिंग से होता है, और एक सीधे रूट को प्लांट किया जाता है, प्लांट के बीच से एक होता है. हाँ. टी बडिंग क्या होती है? हाँ टी बडिंग सर जैसे गन्ने का होता है ना सर, गन्ना जो होता है टी बडिंग होती है. बर्ड निकलते हैं, बर्ड्स को प्लांट किया जाता है. टी बडिंग टी बर्ड नो आइडिया सर, सॉरी सर. आपने एमबीबी किया है ना? यस हाइब्रिड एन्युटी मॉडल यस सर. सुना है ना? यस सर. क्या होता है? सर हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में जैसे वर्क प्रोग्रेस होता है, वैसे वैसे उसकी इंस्टॉलेशन गवर्नमेंट प्राइवेट मेंबर को देती है. जैसे प्राइवेट जो मेंबर जिसने इन्वेस्टमेंट किया है उसे दिया जाता है. भारत में क्या स्कोप है इसका? यस सर. भारत में क्या स्कोप है इसका?
सर नाउ डेज एवरीथिंग अगर गवर्नमेंट ही करे तो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा तो अपॉर्चुनिटी आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, तो रोडवेज, रेलवे बहुत सारे में अभी गवर्नमेंट स्टार्ट कर रही है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़े, तो हाइब्रिड एन्युटी मॉडल वो अच्छा समझा जाता है। नितिन गडकरी जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी हैम को ज़्यादा इनिशिएटिव लेने के लिए प्रमोट किया है। एलिफेंट बॉन्ड और मसाला बॉन्ड दोनों में डिफरेंस क्या है? सर एलिफेंट बॉन्ड का नहीं पता सर, पर मसाला बॉन्ड के बारे में थोड़ा पढ़ा क्या है। है मसाला बॉन्ड के बारे में? सर मसाला बॉन्ड में इंडियन डोमिनेशन करेंसी में बाहर के मार्केट में बॉन्ड, इंडिया का बॉन्ड बेचा जाता है और उससे इन्वेस्टमेंट भारत में लाई जाती है। मोस्टली सर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ही अभी ये होता है, और ग्रीन फील्ड में भी इसका यूज़ किया जा रहा है सर। सॉवरेन बॉन्ड क्या है? ये सर सॉवरेन बॉन्ड, सोलर बॉन्ड, सॉवरेन बॉन्ड। नो आइडिया गिग वर्कर्स यस सर। क्या होते हैं? सर गिग वर्कर्स मोस्टली सर अभी जो ऐप चला है, जैसे ये जो ऑर्डर करने पे जो चलता है, जैसे ओला हो गया, उबर हो गया, उन्होंने अगर अपना ऐप बंद कर दिया तो उसके बाद वर्कर वो मतलब वो अपने छुट्टी पे चला गया जैसे, तो ऐसा है सर कि गिग वर्कर्स जो होते हैं, जो अपना ऐप बंद करने के बाद उनका जॉब मतलब ख़त्म हो जाता है। क्या भारत सरकार इसको बढ़ावा दे रही है? ये सर बढ़ावा दे रही है, क्योंकि लॉन्च की है? सर या एग्जैक्टली नहीं पता सर, अभी रिसेंट किया होगा तो नहीं पता सर अभी। अच्छा, महाराष्ट्र पूना में एक वाटर हार्वेस्टिंग के लिए मॉडल बहुत मतलब इंडिया में फेमस है मॉडल। क्या विशेषता है उस मॉडल की? सर मुझे नहीं पता सर, मॉडल के बारे में नहीं सुना सर उसका। क्रिप्टो करेंसी यस सर। नाम तो सुना ही है, यस बताइए। सर क्रिप्टो करेंसी जो अभी रिसेंटली डिजिटल करेंसी के रूप में यूज़ किया जाता है, मोस्टली ये डिसेंट्रलाइज होता है, जिसमें एक बार एंट्री होने के बाद उसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी रिसेंटली अलाउ किया है उसे, बट अभी इंडिया के RBI ने और इसमें कुछ रिस्पांस नहीं आया है। और क्रिप्टो करेंसी में जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाती है, वन ऑफ द सेफेस्ट टेक्नोलॉजी एट दैट टाइम, बिकॉज जिसमें उसमें माल फंक्शन नहीं किया जा सकता, तो अभी तक सेफ़ माना जा रहा है। कुछ देश ने अभी तक क्रिप्टो करेंसी स्टार्ट किया हुआ है, जैसे शायद वेनेजुएला है, उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, बट चाइना ने बैन लगाया हुआ है। तो कुछ ऐसे भी अभी सर मिक्स रिस्पॉन्स है देशों से, तो अभी अंडर डेवलपिंग स्टेज में है क्रिप्टो करेंसी। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में डिफरेंस क्या है? सर बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी का मतलब एक किसी ने स्टार्ट किया हुआ है क्रिप्टो करेंसी का टाइप है, मतलब एक है अभी चलन में है बिटकॉइंस। क्रिप्टो करेंसी होल एक अम्ब्रेला थिंग है। यस। एग्रीकल्चर सब्सिडी, यस सर। आपके हिसाब से क्या देना सही है सर कि नहीं देना चाहिए? सर अगर टारगेट ऑडियंस है तो उसे देना सही लगता है सर। अगर जैसे सर अभी ट्रैक्टर ख़रीदना है किसी किसान को, वन टाइम वो 7 से 8 लाख उसके पास नहीं होगा, तो अगर उसमें सब्सिडी दी जाती है कि तो वो अच्छी बात है, पर डायरेक्ट लोन वेवर देना तो उसका वो थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता है सर। बट एज अ किसी परचेज, जैसे एक हार्वेस्टर की वैल्यू 20 लाख 22 लाख रुपए है, तो उसके लिए किसान, अगर जो मार्जिनल किसान होगा तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाता है, 22 लाख इन्वेस्टमेंट करेगा। तो अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है अगर प्रोडक्ट के लिए, तो एक डिमांड भी बढ़ेगा मार्केट में, और जो टारगेट ऑडियंस रहेगा उस तक बेनिफिट डायरेक्ट पहुंच जाएगा, तो ये बेनिफिट होता है। ओके, आपका इंटरव्यू पूरा हो गया, हो गया। जा सकते हैं, कॉलेज में बुलाएंगे।